Hello, and hi guys. Welcome to PK Pado. My name is Pravesh, and I am the curator of this series that is called NCRT Distilled. And the subject is ancient Indian history. And the topic that we are gonna talk about today is Indus Valley Civilization, particularly focusing on this, that is the lecture 6 of this series, and that will be, as you can see, economic and social conditions of Indus Valley civilization. All right. So the lecture 6 is about the economic and social conditions of Indus Valley civilization. It will be a very short lecture. ज़्यादा ज्ञान मैं दूंगा नहीं, ज़्यादा ज्ञान आपको चाहिए भी नहीं. आई डोंट थिंक सो. हमें बस ये चाहिए कि हमारा एनसीईआरटी का पार्ट कवर हो जाए, एनसीईआरटी खत्म हो जाए, बार बार हमें एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े. एंड एज यू नो, एज ऑलवेज, इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. प्लीज गो join the channel, follow me on Instagram @pkpado or search pkpado on Telegram to join my channel. The link is in the description of this video. You can also join it from there. So let us start. All right. Earlier we have discussed about the origins, extent, and the cities and the importance and the phases of Indus Valley civilization. पूरी तरीके से हमें ये पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप कैसे हुई और किस तरीके से उसका फैलाव हुआ. ऑलराइट. उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि कौन से फेजेस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में. दैट इज द अर्ली हरप्पन पीरियड, मैच्योर हरप्पन पीरियड, एंड देन the later Harappan period where the decline of Harappan period started. All right. And then we talked about some cities and some features and characteristics of those cities, कि कहाँ पे क्या मिला है, किस सिटी में किस बात पे कैसी ऐसी चीज़ें मिली हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है किस सिटीज़ को लेकर, जिस पे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं. और मोस्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चन आते हैं. कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दे या कोई भी आप पर्टिकुलर एग्जाम दे, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. And then we talked about the importance of Harappan culture, how the Harappan cultures were different from other cultures around the world that were contemporary to it, like the Egyptian and the Mesopotamian cultures, as well as we discussed about how different structures we found there. Like we found grid pattern in roads, wells in houses, type of houses, how the houses were built, and then we talked about drainage system in Indus Valley civilization. But now, after all that, what comes next is how the economy and the society of Indus Valley civilization used to function. हमने ये बात करी थी कि Indus Valley people had trade relations with Oman. We have seen that there were ports like Lothal present in Indus Valley civilization, that is presently in Gujarat, India, and it was used as a dockyard for transportation of goods via sea route to Middle East, in a way that दो इंटरमीडिएट पोर्ट्स जैसे कि दुलमुन और मागन हमें मिलते हैं, जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे बेसिकली. और सोशल कंडीशंस कैसी थी उस टाइम पे, क्या क्लास डिफरेंसेस थे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या था, वर्क कल्चर क्या था, और उस टाइम पे कैसी प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट थी. ऑलराइट. इन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. इकोनॉमिक कंडीशंस जो हमारा पहला पार्ट है इस टॉप लेक्चर का, तो प्राइमरली इट वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें ये समझ में आता है दैट इंडस रिवर वाज द मेन प्रोपोनेंट in a part that
it helped enormously in agriculture. इंडस वैली में इरिगेटेड फील्ड्स बनाना बहुत आसान था। वहाँ पे बहुत जल्दी डेवलपमेंट इस चीज़ का हुआ कि किस तरीके से एक सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ जी सकती है। एज वी हैव सीन अर्लियर, हमें पता है कि जो उनका इमर्जेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये सर्टेन नहीं है। ये ऐसा नहीं हुआ है कि दे वर ऑलरेडी सेटल्ड देयर और दे केम फ्रॉम समवेयर। सो हाउ डिड दे स्टार्टेड getting settled or they started doing agriculture there? So इस बारे में हमें पता नहीं है खास, पर इससे हमें ये बात पता चलती है कि क्योंकि ये इतनी उपजाऊ जमीन थी, इतनी वेल इरिगेटेड थी बिकॉज ऑफ इंडस, तो एग्रीकल्चर वाज वेरी इजी टू डू एंड दे स्टार्टेड डूइंग इट। तो प्राइमरली इट वाज इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। पीपल ऑल्सो एंगेज इन ट्रेड, जो कि ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं हमने देखे, ये क्राफ्ट्स एंड अदर ऑक्यूपेशंस एज वेल। Villages were located near floodplains, produced enough food not only for themselves but also for urban population. All right. तो एग्रीकल्चर में सोइंग किस तरीके से होती थी? फर्टाइल सॉइल थी। ऑल राइट। सीड्स वर सोन इन नवंबर आफ्टर फ्लड वाटर्स रिसीडेड। मॉनसून तो था ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो फ्लड वाटर्स जब कम हो जाए तो हम सोइंग करते थे। क्रॉप्स अप्रैल में हार्वेस्ट करते थे, यानी ये मान के चलिए ये सारे खरीफ क्रॉप्स ही थे। विंटर सोइंग, समर हार्वेस्टिंग, तो खरीफ क्रॉप्स थे मोस्टली। मेन विंटर क्रॉप्स wheat and barley. All right. प्लो किस तरीके से किया जाता था और एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स क्या यूज होते थे? तो वुडन प्लोशेयर थे। आयरन के बारे में नो कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन। ओके, आयरन के बारे में नहीं पता था। वुडन प्लोशेयर यूज होते थे। बुल्स यूज होते थे प्लोइंग के लिए। ये हमें इनकी सील्स में भी इसका रिप्रेजेंटेशन दिखता है और कुछ टेराकोटा फिगर्स मिले हैं, स्कल्पचर्स मिले हैं, फिगर्स मिले हैं, उनमें भी ये हमें मालूम पड़ता है। स्टोन सिकल्स यूज होते थे। मेटल का भी कुछ इतना प्रेवलेंट यूज नहीं था, तो स्टोन सिकल्स यूज होते थे हार्वेस्ट करने के लिए क्रॉप्स को। इसका एविडेंस हमें मिला है काली बैंगन में। ओके, तो प्लोड फील्ड मिली है काली बैंगन में। अगर अगर एक फील्ड है जो प्लो करी हुई है और वो सूख गई है और उसके ऊपर सेटलमेंट अगर डस्ट वगैरह या डेब्रीज जमा भी है और एक्सकवेशन करेंगे तो हमें वैसा के वैसे फील्ड वहां पे मिली है। द फील्ड बिलोंग्स टू अर्ली हरप्पन पीरियड। इट कंटेन टू सेट्स ऑफ फरोज इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। फरोज यानी ऐसे जब ये किया जाता है, जोता जाता है जैसे फील्ड को, इसको फरो कहता है। तो ये जो बीच का पार्ट है फरो है। ऑलराइट, तो इंटरसेक्टिंग फरोज मिले हैं इस तरीके से। दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ मिक्स क्रॉपिंग वेयर टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन साइमल्टेनियसली। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन जो आते हैं यूपीएससी में, वैसे तरीके से पूछा जा सकता है कि मिक्स क्रॉपिंग होती थी या नहीं होती थी। तो इसका जो एविडेंस है वो हमें मिलता है काली बैंगन में। क्रॉप्स किस तरीके से किस तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते थे? तो कॉटन उगाया जाता था। दैट मीन्स दे हैड नॉलेज ऑफ वीविंग क्लोथ्स एंड यूजिंग क्लॉथ टू कवर देमसेल्व्स। उसके बाद राइस कल्टीवेशन का भी हमें एविडेंस मिलता है, बट बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वीट एंड बार्ले पे ज़्यादा एसोसिएटेड है ये वाली जो का सिविलाइजेशन है। लोथल में राइस मिला है। ओके, जैसे बात हुई थी, बहुत कम जगहों पे मिला है, जैसे लोथल में मिला है। देखिए, उसके बाद मेजर क्रॉप्स क्या क्या थे इस टाइम के? वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीस, सेसमे, लेंटिल्स, मिलेट्स, राइस। ऑलराइट। साइट स्पेसिफिक अगर बात करें तो बार्ले मिला है हमें बनावली में। मिलेट्स हड़प्पा, हड़प्पन साइट्स में गुजरात, जैसे हमारा जो रोजडी था, रोजडी हो गया, रंगपुर हो गया, रंगपुर, और देसलपुर में ही मिला है, देसलपुर। यहाँ पे मिलेट्स मिले हैं, इसका एविडेंस मिलता है। राइस का एविडेंस एज वी डिस्कस लोथल में मिला है। ओके, इरिगेशन, तो नीड फॉर इरिगेशन कहाँ पे थी? जहाँ पे सेमी एरिड एरिया, जो राजस्थान, हरियाणा या
कच्छ गुजरात का जो हिस्सा हो गया या सिंध का जो हिस्सा हो गया, दैट आर नॉट मच, दैट डू नॉट गेट मच वाटर फ्रॉम रिवर्स स्पेसिफिकली, और आई वुड से पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस हेयर, सिंधु नदी की बात हो रही है। तो उन जगहों पे इरिगेशन फैसिलिटीज भी धीरे धीरे डेवलप, यानी डेवलप तो नहीं हो, लेकिन ये बात कर सकते हैं कि जो फ्लड इरिगेशन होता है, बारिश आएगी फ्लड आएगा, फील्ड्स इरिगेट हो जाएंगी, उस तरीके से वो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। यहाँ पे देखिए गबरबंद की बात हो रही है। नालाज इनक्लोज बाय डैम्स वर यूज्ड इन बलूचिस्तान। क्या होता है, जैसे नदी का फ्लो है, सपोज करिए नदी का फ्लो है, यहाँ से थोड़ा सा काट के नदी को एक छोटी सी स्ट्रीम यहाँ लाई जाएगी, यहाँ पे एक बांध बनाया जाएगा, डैम बनेगा हल्का सा, और जब जरूरत पड़ेगी तो इसको ओपन करके फील्ड्स में छोड़ दिया जाएगा। ओके, तो इस चीज को गबरबंद कहते हैं। द पर्पस वॉज टू स्टोर वाटर। ऑलराइट, तो कैनाल्स भी यूज होते थे। लार्ज स्केल कैनाल सिस्टम appears to have been absent in most हड़प्पन रीजन। कैनाल्स जो है मिले हैं, पर बहुत बड़ा एविडेंस नहीं मिलता, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द रीजन्स लाइक हरियाणा, नॉर्दर्न एरियाज, हरियाणा हो गया आपका, और रोपड़ हो गया, और जैसे और कौन सा बोल सकते हैं अपन, हड़प्पा हो गया जो कि नॉर्थ की तरफ पड़ता है वहां पे, और जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी जो इंडिया की तरफ पड़ते हैं, जैसे आपका कोट दीजी हो गया, चानूदारो हो गया, काली बैंगन, इन एरियाज में एब्सेंट है ये, क्योंकि ऑब्वियसली देयर वाज नो एडजेसेंट रिवर फॉर दीज प्लेसेस। ये मोस्टली रेनफेड हुआ करते थे ये वाले एरियाज, और जो एरियाज इंडस के बहुत पास पड़े हैं, जैसे चानूदारो नहीं, जैसे कि मोहनजोदाड़ो हो गया, राइट, फिर अलादीनो हो गया, ये वाले एरियाज में हमें कैनाल्स कुछ कुछ जगह मिले हैं। एक जगह है जैसे शोटूहाई। ओके, शोटूहाई में हमें कैनाल का एविडेंस मिलता है, और क्लियर लुक है ना उसका, कि पहले के टाइम में इतने बड़े कैनाल्स तो नहीं होते थे, बट इट वाज मोर लाइक अ नाला सॉर्ट ऑफ। ओके, तो उस टाइप का हमें स्ट्रक्चर्स मिले हैं शोटूहाई में, जैसे ये लिखा ही भी है यहाँ पे, एविडेंस ऑफ कैनाल हैज बीन फाउंड इन शोटूहाई। ओके, ये आपको मोहनजोदाड़ो में भी दिखता है कैनाल का, लेकिन ज्यादा नहीं दिखता, पर थोड़ा बहुत एविडेंस दिखता है। नो क्लियर ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड इन पंजाब एंड सिंध। इट इज पॉसिबल दैट एंशिएंट कैनाल एग्जिस्टेड बट ड्राइड अप और डिसअपीयर्ड ओवर टाइम। मैं वही बताया, जैसे एविडेंस मिले हैं, पर दे वर नॉट श्योर कि इज दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यूज्ड एज अ कैनाल, और is it a nala, or is it a sanitary line or sewage line, something like that, or is it just a um, is it just a base normal geographic structure? They are not sure about it. Wells and reservoirs, हमने देखा wells तो मिलते ही थे, तो ये हो सकता है इसमें कि जो wells हैं they were used for irrigation. Large water reservoirs discovered at Dholavira may have been used to store water for agriculture. ढोलावीरा में रिजर्वायर्स मिले हैं जो हो सकता है कि इरिगेशन में यूज होते हैं। स्टोरेज, अब क्योंकि सरप्लस ग्रेन्स प्रोड्यूस हो गए हैं, सरप्लस क्रॉप्स हमने ग्रो कर लिए हैं, इतना फर्टाइल लैंड था हमारे पास, तो अब जो सरप्लस है उसका क्या करेंगे, तो स्टोरेज चाहिए। तो स्टोरेज किस तरीके से किया जाए, तो ग्रेनरीज बनी थी, बहुत सारी ग्रेनरीज। जैसे सबसे बड़ी ग्रेनरी हमें मिलती है, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रेनरी हमें मिलती है मोहनजोदाड़ो में, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। उसके अलावा हमें मिलती है ढोलावीरा में, ऑलराइट, वहाँ पे भी हमें ढोलावीरा में 6 ग्रेनरीज मिलती है लाइन से, जैसे हमने बात की थी। तो सरप्लस फूड ग्रेन्स व स्टोर इन ग्रेनरीज। इंपॉर्टेंट साइट्स जो मिली है, ये आपका मोहनजोदाड़ो हो गया, कालीबंगन, और हड़प्पा में भी मिला है, ऑलराइट। डोमेस्टिकेशन, क्योंकि हम सेटल्ड थे तो डोमेस्टिकेशन की भी जरूरत पड़ी, जैसे मीट के लिए जरूरत पड़ी डोमेस्टिकेशन की, कैटल रियरिंग की, फिर वुल,
फिर उनके लेदर के लिए, फिर टू बी फॉर देम टू बी यूज्ड एज प्लो इंजन के भी, प्लो करनी है फील्ड्स को तो ऑक्सिस की जरूरत है, तो डोमेस्टिकेशन भी आया। एनिमल डोमेस्टिकेशन वाज प्रैक्टिस्ड इन लार्ज स्केल ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड। Domesticated animals, just as we have talked, for agriculture, transport, food, trade and commerce. Okay. Domestic animal कौन से थे? Domesticated animals, oxen, buffaloes, goats, sheep, dogs, cats, pig. और ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज होता है? कैमल एज डोंकी, ये सब भी मिला है हमें, वाइल्ड जो डोंकी होते हैं वो सब। दे वर मेनली यूज फॉर कैरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। एक इम्पॉर्टेंट हमें जो एनिमल मिलता है, जो आज के टाइम पे नहीं मिलता, लेकिन हड़प्पन सील्स और एविडेंस जो मिले हैं टॉयज के और स्कल्पचर्स के, उससे हमें हम्ड बुल के बारे में मालूम पड़ता है। हम्ड बुल और जेबू वॉज पर्टिकुलरली फेवर्ड बाय हड़प्पन्स। तो ये जो वहाँ की सील्स है और जो टेराकोटा के जो छोटे खिलौने या कुछ बना है डेकोरेशन जैसे हो गए, तो उसमें ये बहुत प्रेवलेंटली हम्ड बुल हमें मिलता है। अब बात आती है हॉर्स की। ये एक बहुत ही, यानी एक बहुत ही टाइट क्वेश्चन है और बहुत डाइसी है ये, कि यूपीएससी स्पेसिफिकली पूछा है, एक बार पूछा है कि हॉर्सेस थे या नहीं मिले थे, एविडेंस हॉर्सेस का एविडेंस है या नहीं है। उस टाइम पे इसका आंसर था नहीं मिले हैं। आज के टाइम पे इसका आंसर है कि मिले हैं। ऑलराइट, तो सिलेबस के साथ साथ ये नेचर भी चेंज हो जाता है क्वेश्चन का। हो सकता है कि नहीं कुछ एविडेंस मिल गया हो, ऐसा कुछ रहता है। तो जैसे हॉर्सेस का जो एविडेंस है वो ये है कि एक डाउटफुल टेराकोटा हॉर्स फिगर मिला है हमें लोथल में। ओके, हॉर्सेस रिमेन, यानी हड्डियां मिली हैं हॉर्सेस की सुरकोतड़ा में। इंपॉर्टेंट है ये बहुत, सुरकोतड़ा। इसी के बेसिस पे वो क्वेश्चन था जो मैं आपको बता रहा हूँ यूपीएससी का, सुरकोतड़ा के बेसिस पे। तो ये बोला जा सकता है, क्योंकि हमें ये भी मिला है और ये भी मिला है, तो ये बोला जा सकता है कि हड़प्पन्स को हॉर्सेस के बारे में पता था। अब ये जरूरी नहीं है कि वो हड़प्पन्स उन हॉर्सेस का यूज करना जानते थे या नहीं, वी आर नॉट श्योर ऑफ दैट। ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि हॉर्सेस के जैसे, अगर हॉर्सेस का एविडेंस क्या होता है, चैरियट होगा, ठीक है, फिर जो हॉर्सेस के नाल हो गई, घोड़ों की नाल होती है जैसे, ओके, फिर उसके बाद सैडल हो गया, जिसके ऊपर सैडल घोड़े के ऊपर रख के बैठ के बैठा जाता है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। चैरियट्स हो गए, रथ जिन्हें हम बोलते हैं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जो ये बता सके कि हॉर्सेस यूज होते थे। हॉर्सेस के रिमेन्स मिलना इज अ डिफरेंट थिंग, हॉर्सेस यूज होना इज अ डिफरेंट थिंग। हो सकता है कि कोई आदमी सेंट्रल एशिया वगैरह से या ईरान से, जहाँ पे हॉर्सेस थे, वहां से इस तरफ आया हो अपना हॉर्स लेके, और फिर वो हॉर्स मर गया हो, उसके रिमेन्स, फिर उसको गाड़ दिया, उसके रिमेन्स मिल गए, ये भी हो सकता है। पर हॉर्स के यूज का एविडेंस कुछ नहीं मिलता है। हाउएवर इट वाज नॉट रेगुलर यूज ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड। अदर नोन एनिमल्स कौन से थे आपके? एलिफेंट, राइनोसरस, बुल, कैमल, डोंकी, इन सब के बारे में पता था। ओके, एलिफेंट डोमेस्टिकेशन के भी एविडेंस मिलते हैं हमें लोथल से। आई एम सो सॉरी। ऑक्यूपेशन किस तरीके के होते थे उस टाइम? तो ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी जो है, काफी टाइप के ऑक्यूपेशन थे। कुछ लोग ट्रेड में इन्वॉल्व थे, कुछ लोग, सील मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडस्ट्री थी। फिर आपके जो हमें टेराकोटा फिगर्स मिले हैं वो हो गया, टॉयज हो गए, ओके, एम्यूलेट्स हो गए, यानी ज्वेलरी इंडस्ट्री हो गई, वहाँ की ऑर्नामेंट्स हो गए। तो ये काफी सारी इंडस्ट्रीज है जो वहाँ पे हमें दिखाई देती है, जैसे वीवर्स, मेसन्स, पॉटर्स, क्योंकि घर बने, आपके ड्रेनेज सिस्टम बने, तो जो आपके मेसन्स वगैरह है उनका भी इंपॉर्टेंस बढ़ता है। बीड मेकर्स, बोट मेकर्स, सील मेकर्स, शिप बिल्डर्स भी होना चाहिए इसमें, क्योंकि इस बात का एविडेंस है कि हम वाया शिप ट्रेडिंग करते थे, तो शिप बिल्डर भी होना जरूरी है, तो शिप बिल्डर भी होगा इसमें एक। अच्छा, बोट मेकर है, लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, ओके, बोट मेकर, शिप बिल्डर, सेम थिंग। बीड मेकिंग इंडस्ट्री मिली है हमें चानूदारों में, लोथल में, ओके। बीड्स आर यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स, ओके,
और वेट्स या वेट की तरह भी बीट्स का यूज किया जा सकता, तो उसकी इंडस्ट्री मिली है। ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरीके का था? डेवलप ट्रेड था। ओके, तो सील्स मिली है और एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है, वो भी मदद करती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख के दूंगा तो कहीं और जो दूसरा शहर है वहां पे उसको पढ़ते आना चाहिए कि मैं क्या लिख के दे रहा हूँ या क्या मुझे क्या चाहिए। तो एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट भी इसमें बहुत हेल्प करती है एक डेवलप ट्रेड बनाने में। फिर स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स मिले हैं हमें, जो कि 16 के उसमें होते थे, मल्टीपल्स में होते थे, 16, 32, 64, इन मल्टीपल्स में हमें स्टैंडर्डाइज वेट्स मिले हैं। और मेजर्स कैसे मिली? एक पर्टिकुलर स्टिक मिली है ऐसी, जिसके ऊपर एचिंग थी, जैसे हमारी स्केल नहीं होती उस तरीके से। तो ये भी था कि मेजर भी कर सकते हैं हम, एक लैंड हो गया या पट या कपड़ा हो गया, तो उसको मेजर करने के भी ऑप्शन थे मैंने हड़प्पन के पास। फिर ट्रेड कमोडिटीज, किस तरीके के जो कमोडिटीज थी उनको ट्रेड किया जाता था हड़प्पन पीपल द्वारा? तो स्टोन्स हो गए, मेटल, शेल्स, बीड्स, पॉटरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। मीडियम क्या होता था? मोस्टली ये माना जाता है कि बार्टर सिस्टम था। आई मीन इफ यू नो बार्टर सिस्टम, कि मेरे पास सपोज 2 बोरी अनाज है और मुझे 2 बोरी अनाज के बदले 3 गाय चाहिए, तो मैं ऐसे आदमी के पास जाऊंगा जो मुझे 3 गाय दे दे और मैं उसको फिर 2 बोरी अनाज दे दूँ। ये होता है बार्टर सिस्टम। नीड्स एंड वांट्स पे डिपेंड करता है बार्टर सिस्टम। कोई कमर्शियल ऑप्शन नहीं है इसमें कि भैया मैंने पैसे दे दिए या कुछ दे दिए, इसलिए ये माना जाता है बार्टर सिस्टम होगा। और कोई कमर्शियल करेंसी नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर मनी तो तब था नहीं। मेटल्स का हड़प्पन को ज्यादा आइडिया नहीं था। जैसे हमने बात करी, कॉपर का भी इतना आइडिया नहीं था, ना ही आइडिया था। कॉपर कल्चर बेसिकली हड़प्पन कल्चर के बाद ही आया है। बाद यानी उसके साथ शुरू हो चुका था, उसके जब डिक्लाइन चल रहा था उसके टाइम तक शुरू हो चुका था। पर उस रीजन में, जिस रीजन में इंडस वैली सिविलाइजेशन बना, उस रीजन में चैल्कोलिथिक कल्चर नहीं था। दूसरी जगह था, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इंडिया में और साउथ में, पर उस तरफ नहीं था। हड़प्पन डिड नॉट यूज मेटालिक मनी, एक्सचेंज गुड कंडक्टेड थ्रू बार्टर सिस्टम। ओके, यही बात करी हमने। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड कहाँ कहाँ करते थे ये लोग? तो ये जो है हड़प्पन रीजन के अंदर ही होता था। जैसे कुछ चीजें, जैसे हमें राइस मिला लोथल में, ठीक है, तो अगर किसी को कुछ चाहिए, जैसे सील्स चाहिए किसी को जो कि मोहनजोदाड़ो में मिले, तो वो राइस देके सील्स ले लेगा। तो इस तरीके का जो है, विद इन द सेम सिविलाइजेशन, इंटर सिविलाइज यानी इंटर सिविलाइजेशन, हमें ये वाला ट्रेड मिलता है। कार्ट्स विद सॉलिड व्हील्स वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये कार्ट ऐसी मिली है, सॉलिड व्हील मिला है, तो इसलिए हम ये अज्यूम कर सकते हैं कार्ड्स यूज होती होंगी। एक्सटर्नल ट्रेड शिप्स के थ्रू होता था। हड़प्पन प्रैक्टिस नेविगेशन अलोंग द अरेबियन सी कोस्ट। ओके, जो कि हमारा डॉकयार्ड मिला है हमें, वही लोथल में, उसके थ्रू ये होता था। फॉरेन ट्रेड रिलेशन, तो कमर्शियल लिंक्स थे कहाँ कहाँ? राजस्थान, खेतरी माइंस, कॉपर का सोर्स है। अफगानिस्तान में लपीस लजूली, ईरान हो गया, सेंट्रल एशिया, मेसोपोटामिया, ये सब के साथ ट्रेड रिलेशंस थे। एविडेंस क्या मिला है? मेसोपोटामिया से एविडेंस मिला है, जहाँ पे सील्स मिली है, हड़प्पन सील्स। मेसोपोटामिया जब, यानी इराक में जब एक्सकेवेशन किया तब ये सब मिला है। तो मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में भी जो उनके मोस्टली इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, और जो रिटर्न रिकॉर्ड्स इतने कुछ खास मिलने नहीं है, लेकिन जो पिलर पे इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिले, उसके बेसिस पे उसकी वो स्क्रिप्ट डिसाइफर हो चुकी है। मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट इज डिसाइफर्ड। तो उसके बेसिस पे ये मालूम पड़ा है कि इनका मलुहा नाम के रीजन से ट्रेड रिलेशन था 2350 बीसी में। और ये मलुहा जो है, इसी को कंपेयर किया जाता है आपका मोहनजोदाड़ो से, यानी हड़प्पन, हड़प्पा से, हड़प्पन सिविलाइजेशन से। ओके, एक वो बुक है बहुत फेमस, इमॉर्टल्स ऑफ मलुआ, उसमें यानी रीजन वगैरह जो है उनकी सेम कहानी है, कहानी भली फिक्शनल है पर ऐसी कहानी है।
तो मलुआ एंशियंट मेसोपोटामियंस नेम फॉर द इंडस रीजन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, इंटरमीडिएट ट्रेडिंग सेंटर्स कौन से थे हड़प्पन के? जो हमने बात करी, मैंने कहा मिडिल ईस्ट, पहले यहाँ से लोथल से, जैसे सपोज करिए मैं एग्जांपल एक आपको मैप ही बना के बता देता हूँ, ठीक है। ये मान के चलिए आप, ये अपना इंडिया का मैप है और यहाँ पे कहीं मिडिल ईस्ट है। ओके, यहाँ पे कहीं मिडिल ईस्ट है, ये आपका अरेबियन सी है। तो यहाँ पे आपका हो गया ये लोथल, यहाँ से शिप जाता था ओमान में, ये ओमान है यहाँ पे मागन है। और मिडिल ईस्ट में अगर यहाँ पे इस तरफ अगर मान लीजिए इजिप्ट है, तो यहाँ जाने के लिए ये बहरेन है, बहरेन के पास एक जगह थी, बहरेन है, इसको कहा गया है दिलमुन। और ये जो ओमान है ये आपका मगन। ये दो कोस्ट इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन सेंटर हमें मिलते हैं, इसका प्रूफ मिलता है। दिलमुन हो गया आपका बहरेन, लोकेटेड इन पर्शियन गल्फ, और मगन हो गया अदर इंटरमीडिएट मेंशन्ड इन मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स। ओके, these center acted as links between Mesopotamia and Indus region। लोथल का रोल, पोर्ट टाउन। ओके, यहीं से लोथल से ही, ये जो लोथल है यहाँ पे गुजरात में, यहीं से पहले शिप्स डॉक होती थी, यहाँ पे शिप्स डॉक हुई, यहाँ पे सामान चढ़ाया उस पर और फिर यहाँ से रवाना होते थे दिलमुन और मगन के लिए। ये ट्रेडिंग सेंटर था लोथल, बहुत इंपॉर्टेंट। और इम्पोर्टेड गुड्स आते थे यहाँ पे, ठीक है। एक्सपोर्ट्स क्या करते थे हड़प्पन्स? जो मेजर आइटम्स था एक्सपोर्ट करने का वो था पॉटरी, ग्रेन्स, कॉटन गुड्स, स्पाइसेस, स्टोन बीड्स, पर्ल्स, आई पेंट, कॉस्मेटिक पेंट। कॉस्मेटिक्स के मामले में भी काफ़ी डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, इसके हमें प्रूफ मिलते हैं। मेसोपोटामिया से प्रूफ मिले हैं कि भैया यहाँ से हड़प्पा से जो मेकअप का सामान है ये सब भी आता था। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कैसे होता है? लपिस लजुली में। लपिस लजुली इफ यू नो, एक पत्थर होता है नीले रंग का, अफगानिस्तान और ईरान इस रीजन में ज़्यादा पाया जाता है। नीले रंग का पत्थर होता है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत पत्थर है। तो उसके थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ करता था, क्योंकि बार्टर सिस्टम नहीं कर सकते। अब सपोज करिए मुझे यहाँ से हड़प्पा से मैं एक ट्रेडर हूँ, मुझे हड़प्पा से सामान लेना है और मुझे सामान ले आके वहाँ बेचना है, तो मैं अपने साथ लपिस लजुली लेके चलूंगा, हड़प्पन से सामान लूंगा, उनको लपिस लजुली दे दूंगा, सामान लेके जाऊंगा वहाँ पे, अपना सामान लपिस लजुली में ही बेचूंगा, जो बचेगा प्रॉफिट वो रख लूंगा, जो कॉस्ट आएगा मेरा वो पे कर दूंगा। लपिस लजुली के थ्रू ये ट्रेड होता था। दैट इज अ ब्लू सेमी प्रेशियस स्टोन। इट हैव एनहेंस्ड द सोशल प्रेस्टीज ऑफ द रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास बहुत चाहती थी इसको। ट्रेडिंग कॉलोनी इन अफगानिस्तान, देखिए हड़प्पन एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग कॉलोनी इन द नॉर्दर्न अफगानिस्तान एंड फैसिलिटेट ट्रेड विद सेंट्रल एशिया आल्सो। इसके भी एविडेंस मिलता है। स्पेसिफिक पिन पॉइंट नहीं है इसमें, पर ये कहा जा सकता है कि ये है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये जैसे रीजन की बात अगर हो रही है, तो ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, तो पाकिस्तान पाश्तून वाला एरिया जो है आपका पाकिस्तान में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उस रीजन की बात हो रही है। इंपोर्ट्स क्या क्या करते थे हम? इंपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या इंपोर्ट किया जाता था? तो गोल्ड अफगानिस्तान या कर्नाटका से। कर्नाटका का इज नॉट श्योर कि वहां तक हमारा ट्रेड था या नहीं था, पर अफगानिस्तान से वेरी श्योर एविडेंस मिले हैं। सिल्वर अफगानिस्तान, कॉपर खेती राजस्थान ओमान, टिन अफगानिस्तान ईरान, कार्नेलियन ये एक टाइप का पत्थर होता है, सौराष्ट्र से आता था यानी गुजरात से। जेड सेंट्रल एशिया से, ये भी एक टाइप का पत्थर है। एमेथिस्ट पत्थर है, ये महाराष्ट्र से मिला है। महाराष्ट्र में कौन सा प्लेस था? देमाबाद। ओके, फिर टर्कोइस, ये सेंट्रल एशिया और ईरान से ये मिला है। इकोनॉमी वाला पार्ट हो गया है अभी हमारा। तो इकोनॉमी से हमें ये समझ में आता है इसकी बेसिकली कि ट्रेड सेंटर्स क्या क्या थे, किस तरीके का जो आपका
इकोनॉमी थी, इट वाज मोस्टली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। किस तरीके से डोमेस्टिकेशन किया गया जानवर का, उनका यूज़ किया गया, और किस तरीके से ट्रेड डेवलप हुआ कि बार्टर सिस्टम हुआ। फिर ट्रेड जो था वो सिर्फ इंटरनल नहीं था, एक्सटर्नल ट्रेड भी था, शिप्स का यूज़ किया गया। पोर्ट्स थे, जैसे लोथल है, एक डॉकयार्ड और एक पोर्ट था लोथल, वहां से सामान डिलीवर किया जाता, यानी बेचने के लिए भेजा जाता था। मेसोपोटामिया में से ट्रेड रिलेशनशिप थे। इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन मिले हैं दिलमुन और मगन में, यानी बहरीन और ओमान में मिले हैं। तो वहां से ये सब चीजें क्लियर होती है कि इकोनॉमी किस तरह फंक्शन करती थी। इकोनॉमी से हमें ये भी एक आइडिया हुआ कि एक कमर्शियल पेपर करेंसी यानी कमर्शियल लिक्विड करेंसी नहीं थी इनके पास। ईदर देयर वाज बार्टर सिस्टम और देयर वाज ट्रेड इन लपिस लजूली। ऑलराइट, नाउ द सोशल कंडीशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सोसाइटी जो थी इगैलिटेरियन थी। इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि भेदभाव नहीं था सोसाइटी में, अमीर गरीब, और फिर आपका पावर डिफरेंस, पावर एलीट और मासेस में जैसा डिफरेंस होता है वो वाला डिफरेंस नहीं था। फिर जात पात नहीं थी, और जेंडर डिफरेंसेस नहीं थे। तो ये सब हमें इससे, यानी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जो इसको नकार सके। तो इन सब चीज़ों में जिसके बारे में इतना एविडेंस नहीं मिलता है रिटर्न, या कोई प्रूफ नहीं मिल जाता है एक्सकवेशन में भी, तो ये माना जा सकता है कि ये पर्टिकुलरली एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। पीपल अपीयर टू बी ट्रीटेड इक्वली इन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ। कास्ट सिस्टम नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। सोशल डिफरेंशिएशन, हाँ एक ये है जैसे कि वेरिंग साइजेस ऑफ हाउस मिले, कुछ बड़े घर मिले, कुछ छोटे घर मिले। एक और जो बात है सोशल डिफरेंशिएशन की, जो जो समझ में आती है, बहुत सारी जगहों पे आती है, बहुत सारी जगहों पे नहीं भी आती, ये मुझे समझ नहीं आता। जैसे ये मुझे भी समझ नहीं आता, जैसे कुछ जगहों पे लोअर टाउन के अंदर सिटाडेल है, ठीक है, फिर कुछ जगहों पे लोअर टाउन के बाहर सिटाडेल है, ठीक है, कुछ जगहों पे लोअर टाउन है, फिर मिडिल टाउन है, और मिडिल टाउन का एक हिस्सा सिटाडेल है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की क्लासेस प्रोबेबली रहा करती थी, ठीक है। और जैसे जो लोग सिटाडेल में रहते थे वो या तो रूलिंग क्लास थी या बड़े ट्रेडर्स थे उस सेटलमेंट के, और जो बाहर की तरफ रहते थे लोअर टाउन में, वो लोग या तो क्राफ्ट्समैन थे या फिर वर्कर्स थे इंस्टीट्यूशंस के। जैसे अगर कोई नगर रक्षक वगैरह हो गए आपके, या गार्ड्स हो गए, तो दे यूज टू लिव इन द लोअर टाउन। अदरवाइज द बिग प्लेयर्स, दैट इज द रूलिंग क्लास, एलिट्स, priest, or the big traders, bankers and all, they used to live in the citadel. And so also we have seen in the earlier lecture that in Mohenjo-daro, suppose, the Great Bath, which was a ritualistic bathing area, that was found in citadel. So the elites used to get some sort of advantage or some sort of privilege by living in a citadel, and like better roads have been found in citadel, better housing, better privileges like this great bath, or closeness to granaries, so they can protect the greens. So all this have been found in the citadel. That this shows that there was some sort of, not a lot because we haven't found any evidence, but there was some sort of class differentiation in Indus Valley civilization. तो वेरियस साइज ऑफ हाउस मिले हैं जैसे, और जो है ये हो सकता है कि वैसे ही जैसे आजकल होता है, अभी होता है कि लार्जर घर जो होंगे वो अमीरों के होंगे, छोटे घर जो होंगे वो ऑर्डिनरी पीपल के होंगे। फूड हैबिट्स क्या मिली है? फूड हैबिट्स जो रहती है मोस्टली इट डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफी, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन रिलीजन एज वेल। तो उस टाइम की जो फूड हैबिट्स थी, जो कि वहाँ पे जो एविडेंस मिले हैं, जिस तरह से राख मिली है किसी चीज़ की, या जैसे ग्रीनरी है, आपके ढोलावीरा में जो ग्रीनरी मिली है उसमें
कुछ फॉसिलाइज्ड आपको ग्रेन्स मिल गए, तो उस तरीके से मालूम पड़ा है कि हाँ कुछ क्या क्या उगाते थे लोग। तो डाइटरी प्रैक्टिस में चार्ड ग्रेन्स, सीड्स, प्लांट रिमेन्स ये सब मिला है। अब एक टर्म है आर्कियोबॉटनिस्ट, ये वो होते हैं लोग जो कि एंशिएंट प्लांट रिमेन्स को स्टडी करते हैं। तो आर्कियोबॉटनिस्ट होता है, ये मेंशन था एनसीईआरटी में, इसलिए आई हैव गिवन अ डेफिनेशन राइट हियर। प्लांट बेस्ड फूड, जो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वीट, बार्ले, मिलेट, पल्सेस, राइस, ये सब होता था। कुछ जगहों पे मेज यानी मक्के का कुछ जगहों पे वर्णन मिलता है, पर मोस्टली डाउटफुल है, क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से, ये अभी अपन मैं मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ, ये एज्यूम किया जाता है दैट मेज इज नॉट एन इंडिजिनस क्रॉप ऑफ इंडिया। मेज वाज ब्रॉट टू इंडिया बाय द पोर्चुगीज, ऑलराइट, फ्रॉम मैक्सिको। तो मेज वहाँ का प्रोडक्ट है, यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है। तो कुछ किताबें बोलती हैं कि मेज लोकली भी लोकल था सब कॉन्टिनेंट का, और कुछ बोलती है कि बाद में आया। ओके, तो इस पे कोई श्योरिटी नहीं है, क्वेश्चन आएगा भी नहीं मोस्टली, अगर आएगा भी तो अब वो डिपेंड करता है कि कोई भी जो एजेंसी जो एग्जाम करा रही है वो क्या मानती है। अगर ये मानती कि इंडिजिनस था तो इंडिजिनस था, अगर वो ये मानती कि फॉरेन था तो फॉरेन था, पर इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि हाँ और इसका वर्णन कुछ मिलता है, कुछ भी नहीं है। एनिमल बेस्ड फूड, फिश, मीट, ओके। तो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो थे वो मीट के लिए कैसे और यूज होते थे, कैटल, शीप, गोट, बफलो, पिग, ये सब यूज होते थे। क्लोथिंग, किस तरीके से कपड़े पहनते थे, टेक्सटाइल का नॉलेज था, ओके। न्यू द आर्ट ऑफ वीविंग कॉटन, क्योंकि हमें क्ले के स्पिंडल्स मिले हैं, ठीक है। स्पिंडल क्या होता है, ऐसी एक छड़ी होती है, बड़ा बेस होता है, जैसे धागा आता जाता है तो धागा इसमें लपेटा जाता है, गोल 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 गोल, पूरे धागे का वो बन जाता है स्पिंडल एक, एंड इट इज यूज फॉर स्पिनिंग थ्रेड। मटेरियल इज यूज्ड, तो कॉटन क्लॉथ मिले, यानी जो बनाए गए थे, क्योंकि हमने एक प्रीस्ट है, प्रीस्ट का हमें एक स्टैचू मिलता है, ओके, किंग प्रीस्ट बोलते हैं उसको। उसने एक शॉल की तरह कुछ ओढ़ के रखा है, उससे ये एविडेंस मिलता है कि हाँ कॉटन का कपड़ा होगा। वूलन गारमेंट्स वर आल्सो यूज्ड। ड्रेस पैटर्न, वुमेन वोर शॉर्ट स्कर्ट्स, मेन रैप्ड इन लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ, ये वाला जो बताया किंग प्रीस्ट का, उसने एक शॉल ओढ़ के रखी है, किंग प्रीस्ट की अगर स्टैचू अगर आप देखोगे तो उसमें एक शॉल ओढ़ के रखी है उसने। अर्लीस्ट कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन वाज प्रोबेबली कल्टीवेटेड एट मेहरगढ़ अबाउट 7000 ईयर्स अगो, ठीक है। ये मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या मिलते हैं हमें, एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ मिला है, कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में। नॉट टू बी सरप्राइज, कपड़े की इतनी लाइफ होती है कि एक एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ मिल गया कॉटन का मोहनजोदाड़ो में हमें, अटैच टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेस इन मोहनजोदाड़ो। और एक और मिला है जो एक कॉपर ऑब्जेक्ट के साथ चिपका हुआ था। अब ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी भी मिली है हमें, उससे ये प्रूव होता है कि यार लोग फैशन में काफी बिलीव रखते थे उस टाइम पे। जैसे आदमी है जो मेन, वो एम्यूलेट्स पहनते थे, ताबीज, ताबीज बोलते हैं जिसे हम। और वुमेन है जो ये ब्रेसलेट्स और नेकलेस पहनती थी जो बीड्स के बने होते थे, पॉलिश पत्थर के बीड्स जो होते हैं उनसे ये ये सब बनते थे ऑर्नामेंट्स। मटेरियल शेल, ओके। तो कॉमन पीपल शेल या ऑर्डिनरी बीड्स पहनते थे जो कि स्टोन्स की बनी होती थी, और वेल्दी पीपल गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि ये इम्पोर्टेड माल है। अभी तक इन लोगों के पास, हड़प्पन के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने की, तो मोस्टली दे गॉट इट फ्रॉम ट्रेड, बाय ट्रेडिंग गुड्स आउटसाइड द सिविलाइजेशन। तो ये सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स वगैरह हो गया, किसी न किसी रूलर को गिफ्ट दे दिया कुछ, ओनली दे कुड हैव बीन यूजिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। तो ये भी इकोनॉमिक डिफरेंस दिखाता है। अम्यूजमेंट एंड टॉयज में क्या मिला है, टॉयज मिले हैं बच्चों के, जैसे क्ले टॉय मिला है, ठीक है। टांगा पता है आपको,
टोंगा, एक्का बोलते हैं जिसको। तो उसके जैसा एक टॉय मिला है कि सामने एक जानवर बंधा हुआ है, वो एक कार्ड को खींच रहा है, उस टाइप का। फिर एनिमल फिगर्स मिले हैं, हम्ड बुल की बात हुई थी, ओके। फिर एलिफेंट, राइनोसोरस, ये जानवरों के छोटे छोटे फिगर्स मिले हैं। म्यूजिकल टॉयज भी होते हैं, विसल मिली है, आगे से पक्षी बना है ऐसा, ठीक है। और ये ऐसी एक बड़ी सी ऐसी इस टाइप की विसल मिली है, जो पक्षी जैसी दिखती है, बर्ड शेप विसल। और रैटल मिले हैं, रैटल मतलब झुनझुना, बच्चों का झुनझुना होता है, उसको रैटल कहते हैं, वो मिला है। कुछ गेम्स मिले हैं, मार्बल्स और यूज मोस्ट पॉपुलर गेम जो कंचे बोलते हैं। तो ग्लास तो ऑब्वियसली उस टाइम डेवलप नहीं होगा, तो पत्थर हो गए या बीट से कंचे। डॉल्स मिली हैं। और हो सकता है बड़े लोग जो करते हो, एडल्ट्स, कैम्बलिंग, डांसिंग, हंटिंग, ये सब काम करते हो रिक्रिएशन के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बरियल प्रैक्टिस की। तो मेथड क्या था बरियल का, ये लोग बॉडी बर्न नहीं करते थे, अभी तक वो वाला डेवलपमेंट नहीं आया था जो कि वैदिक रिचुअल्स और सनातन धर्म जैसे इंडिया में हमें बताता है। लेकिन बरियल प्रैक्टिसेस जो कंटिन्यू चल रहे थे प्री हिस्ट्री में, उसी को फॉलो किया जा रहा था। तो पिट्स में ही इनका बरियल होता था, और ग्रेव गुड्स रखे जाते थे, पॉटरी और ऑर्नामेंट्स मिले, मतलब ये आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते थे। तो कुछ जगह पे ज्वेलरी मिली है, आदमी औरत दोनों की ग्रेव्स में मिली है। कुछ जगह पे कॉपर के मिरर मिले हैं, ओके। अब इम्पोर्टेंट फीचर्स जो है, इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम सोशल लाइफ, क्या चीज क्या इन्फ्लुएंस करती है। घर के साइज, बड़े छोटे घर दोनों मिले, ये बताता है क्लास डिफरेंस आपको, सोशल क्लास। ज्वेलरी मिली है, ठीक है। तो तो ये इन्फर करता है कि यार लोग फैशन फॉलो करते थे, आदमी हो या औरत, जो भी हो। पॉटरी मिली है, जो कि जैसे ग्रेव गुड्स में हमें पॉटरी ऑर्नामेंट्स मिले हैं, तो आफ्टर लाइफ बताता है ये। कॉटन टेक्सटाइल्स, तो वीविंग इंडस्ट्री के बारे में बताता है। टॉयज मिले हैं, तो रिक्रिएशन के बारे में बता रहा है ये। गोल्ड एंड सिल्वर, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जैसे ट्रेडर्स हो गए, उनके पास गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स थे। ऑलराइट। सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से था, ये उसका एक टेबल है, ये पढ़ लीजिएगा आप, कि हमें नेचर किस तरीके से मिलता है। इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, कास्ट सिस्टम नहीं मिलता है, और क्लास डिफरेंसेस मिलते हैं क्योंकि घर अलग अलग साइज के मिले हैं। रिच एंड पुअर होते होंगे क्योंकि अलग अलग टाइप की ज्वेलरी मिली है हमें बरियल से। अब कुछ जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमने डिस्कस करी है वो उनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक चार्ट है। फिर जो सोशल लाइफ थी वो किस तरीके से होती, ये जस्ट एज अ ग्लैंस थे, क्या क्या चीज़ें मिली हैं और किस तरीके से। जैसे वही जो हमने डिस्कस किया, एक छोटे से टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने ये। तो बरियल प्रैक्टिस, जैसे आपकी पिट बरियल की बात हुई, ठीक है, आफ्टर लाइफ की बात हुई है, क्या था, किस तरीके से कपड़े, कौन से कपड़े पहनते थे, ये वाली बात। इसके साथ ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। तो हमने डिस्कस किया, जैसे इकोनॉमी की मैंने बात करी थी पहले, इकोनॉमी में हमने डिस्कस किया किस टाइप की एग्रीकल्चरलिस्ट इकोनॉमी है, किस तरीके से ट्रेड डेवलप हुआ और क्या क्या किया उन्होंने, और करेंसी, बार्टर सिस्टम, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सब की बात हुई। सोशल लाइफ में ये बात हुई कि सोसाइटी किस तरीके से काम करती थी, क्या कास्ट सिस्टम था, नहीं था, क्लासेस कैसी थी, क्या क्लासेस का एविडेंस मिलता है हमें। फिर हमें बरियल प्रैक्टिस किस तरीके थे, उनका एग्जाम्पल मिलता है कि हाँ आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे या नहीं करते थे। टेक्नोलॉजी किस टाइप की थी, कपड़े पहनते थे, कपड़े पहनने की कैसी टेक्नोलॉजी थी। फिर सोसाइटी बेसिकली किस तरीके से फंक्शन करती थी, क्या इतनी अनइक्वालिटी थी जिस तरह की हम आजकल देखते हैं, या फिर कुछ तरीके से इगैलिटेरियन थी कि इक्वालिटी पे फोकस किया जाता था जहाँ पे। फिर हम बात करते हैं, जैसे अगर और हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो हाँ, घरों के साइज से हमें ये पता चला कि सोशल डिफरेंस तो कुछ तरीके का था, कुछ लोग रूलर्स थे तो कुछ लोग रूल्ड थे। और जो डिफरेंस हमें टाउन प्लानिंग में दिखता है, जैसे सिटाडेल थोड़ा हाइट पे है, तो ऊंचाई पे क्यों है, कम लोग क्यों रह रहे हैं, कम घर क्यों बने हैं, जो घर बने हैं वो बड़े क्यों हैं। और सिटाडेल में बड़े घरों के आसपास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जैसे जो ग्रीनरीज है और आपका ग्रेट बात है, ये सब वहाँ क्यों मिला है। लोअर टाउन
में ये सब क्यों नहीं मिला? कुछ कुछ जगहों पे सिटाडेल है लेकिन लोअर टाउन एब्सेंट है। कुछ कुछ जगहों पे हो सकता है कि प्योर रिपब्लिक पोजिशनिंग भी हो, इसलिए वहाँ पे सिटाडेल है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका लोअर टाउन है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से सीखने को मिले। इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक एंड जो सोसाइटी इम्प्रिंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो क्लियर हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ आएगा भी नहीं और क्वेश्चन यूपीएससी इससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है। या कोई भी स्टेट पीएससी अगर पूछेगी तो फैक्ट पूछेगी कि हॉर्स का एविडेंस मिला आपको, या किस टाइप का एनिमल का एविडेंस मिला। जेबू की बात करी हमने, हॉर्स के एविडेंस की बात करी हमने, तो ये सब एविडेंस मिले या नहीं मिले, और क्या चीज़ें इंपोर्ट होती थी, क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। So we are done with 2 lectures of our Indus Valley civilization. Next we will discuss mostly about art and craft, religion, decline and contribution of Indus Valley civilization. आर्ट एंड क्राफ्ट किस तरीके से डेवलप हुई, ओके, रिलीजन कैसा फॉलो करते थे वो, और किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन था इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और फाइनली डिक्लाइन किस तरीके से हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों डिक्लाइन हुआ, क्या कारण थे और क्या क्या रीजन हाइपोथेसिस और स्टडीज एक्सकेवेशन हमें सजेस्ट करती है। ये सब चीज़ें हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तब तक मस्त रहो, पी के पढ़ो, टेंशन मत लो, अच्छे से करो भाई, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ जॉइन माय टेलीग्राम चैनल टू गेट दीज नोट्स। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन द यूट्यूब वीडियो। Everything I'm trying to give you is what I didn't had while I was preparing. तो मैं बस ये कोशिश रहती है कि बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करूँ मैं। और प्लीज़ प्लीज़ एनसीईआरटी डिस्टिल अच्छे से फॉलो कीजिएगा। ये आपका एक बहुत बड़ा टाइम का चंक बचा लेगा, बहुत बड़ा, यानी पूरा फाउंडेशन जो मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ता है आपको, वो आप पूरी तरीके से, तो पूरी तरीके से तो नहीं कहूँगा मैं, पर मैं ये कहूँगा कि आप एक रीडिंग के बाद एनसीईआरटी की बाईपास कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आपको एनसीईआरटी बार बार नहीं पढ़नी पड़ेंगी। You won't have to revise NCERTs again after doing this course. So please do it. NCERT Distill is very, very good course. I am developing it myself by my notes and whatever I have studied so far in my life while preparing for government exams. I am trying to contribute just a little. ठीक है फिर, let's do it then. I'll see you guys in the next lecture. Till then, bye bye.